Okay, Rossi is not fine. Sorry. Question passes to Nidhi. First Nidhi, interactive what was the sentence. First interactive sentence was here you are. That is यह लीजिए. Neeta di, what was our first interactive sentence? Uh, our first interactive sentence is here you are. ये लीजिए. Okay. Hello, hello, Rupal ji. निधि. Nidhi Patel निधि is there? पटेल दी. अच्छा, sorry. निधि पटेल. Neeta ji, you should ask question to Nidhi. Okay. Good evening, Nidhi ji. Very, very good evening. How are you? I'm good. Thank you. And you? I'm also good. Nidhi Okay. Tiwari, do you have any nickname? Yes, ma'am. What is your nickname? My nickname is Bittu and Nini. Okay. I was thinking it will be different, so we can call you. No, we will call her Mimmi. सर निन्नी. Minni. वाह, Okay. नामकरण. सर निन्नी. नामकरण हो गया. Okay, Mimmi. ठीक है सर मिन्नी. N ना N निन्नी. यस मैम. ओके निन्नी आ गई. बच्चे को निन्नी आ गई बोलते ना. ओके नाउ नीता जी. Go ahead please. Okay. Thank you, ma'am. निधि जी. बिट्टू. Ninni. Betu. अच्छा. बिट्टू. Yes. Bittu, what was our first interactive sentence? अभी निधि दीदी से पूछिए. ये मेरे लिए बोला Okay. गया है. Okay. Your also name is Nidhi Tiwari. मेरा है ना Okay. निधि तिवारी नाम. यस. Okay. Then who is Nidhi Patel? I'm Okay. Okay. Okay, Nidhi ji. What was our first interactive sentence? the first. The first interactive sentence was here you are. That is ये लीजिए. Okay. Who is rest? Uh, Nidhi, is the board clearly visible? Yes, sir. The board is clearly visible. Why? क्या बोर्ड साफ साफ दिखाई दे रहा है? हाँ सर, बोर्ड हमको साफ साफ दिखाई दे रहा है. Namrata, is the board clearly visible? Yes, Nidhi. Board is clearly visible. क्या बोर्ड साफ साफ दिखाई दे रहा है नम्रता? हाँ निधि, बोर्ड साफ साफ दिखाई दे रहा है. नीता जी, इज बोर्ड क्लियरली Yes. विजिबल? Yeah. Network issue with Neeta ji. Okay, Namrata, which chapter is this sentence related? Sir, this chapter related to be present and WH. Sorry, come again. This chapter is related to. Namrata, your question, your answer was wrong.
Nidhi, which chapter is this sentence related? So this sentence is related to be present. करेक्ट। यह वाक्य किस अध्याय से संबंधित है? सर ये वाक्य बी बी चैप्टर से संबंधित है। लिटिल इनकम्प्लीट आंसर। बी अध्याय से संबंधित है। नो। हु कैन गिव मी ये वाक्य सर ये वाक्य बी प्रेजेंट से संबंधित है। सो देयर यू आर। कैन यू आस्क द नेक्स्ट रिलेटेड क्वेश्चन टू समबडी एल्स? Okay, sir. Namrata, what is the subject in this sentence? There is no subject in this sentence. Nidhi, what is subject in this sentence? Ask No, the next sorry. question. Nidhi, what is the helping verb in this sentence? Yes. Is the helping verb in this sentence? Your answer is not correct. Yes, sorry. Namrata, Sivang join it. Sivang is join. No, Nidhi, Mimmi will ask to Shiva same question. Mini Shivang asked, bhaiya, what is helping verb in this sentence? Sir, as far as I think, question is wrong. lipstick is missing. Lipstick is missing, sir. But you can answer Shivang if you have heard. Nidhi, you can answer. Nidhi Patel. There is no helping verb in this sentence. Okay. Shivang, what is who in this sentence? Namrata, what is who in this sentence? Who is a WH word in this sentence? Correct. Neeta ji, what is the it in this sentence? Namrata ji, this is the subject. Am I true? Neeta ji, ask Thank same you, sir. question to others. Okay. Nidhi ji. Nidhi ji, what is the helping verb in this sentence? Neetaji, there is no helping verb in this sentence. Okay. दोस्तों ये बड़ी अच्छी बात है कि इन्होंने फटाफट एक दो बार ही सुन के क्वेश्चन करना शुरू कर दिया, भले ही वो गलत हो। और आप सब जानते हैं इस क्लास में मिस्टेक्स गलत है पर चलत है। यस, थैंक यू। सर कल भी मैंने देखा कि नीता जी ने मतलब इंटरेक्टिव इडियम्स को कितने जल्दी से मतलब सुनकर ही बोल दिया। निधि, रूपल जी is here. Okay. Rupal ji, what is the is in this sentence? Is the helping verb in this sentence. Please ask to others.
Shivang, who is rest? Neha is I am rest. rest. Neha, what is in the sentence? Rupalji is in the main verb in this sentence. Beta Neha asked the same question to Namrata Didi. Anamtaji, what is the is in this sentence? Is the main verb in this sentence. Nidhi, what is it in this sentence? Mm. You are asking to me, Namrata? Yes, Nidhi. It Yes, is your the name is Nidhi. what is it? It is the subject. So object. Nidhi What? asked this question to Mini. Second Hmm. Nidhi is Mini. Hmm. Uh, Mini. Sir, Nini or Mini? Okay. Nini, what is it in this sentence? Okay, Mini. I don't know the Neha di. What is the it in this sentence? Nidhi is the is it object is the in this sentence. Same question, Neha. Okay, Namrata di, what is the it in this sentence? It is Sorry, the Neha. Okay. possessive. It is the possessive subject, sir. Yep, possessive object. Nidhi, what is it in this sentence? As far as I think, Rupal ji is rest, Namrata. Rupalji, Yeah. what is it in this sentence? Object is it is in the sentence. Mini Shiva, asked the same question to Neeta ji. Neeta di, what is it in this sentence? Good. Nidhi ji, it is the subject in this sentence. Neeta ji, you can ask me now. Okay. Sir, what is the it in this sentence? Very nice. It is an object in this sentence. It is an object in this sentence. Nidhi, what is it in this sentence? Sir, it is an object in this sentence. इस एक बार हिंदी कर लेते हैं, इसके बाद नहीं करेंगे. निधि, इस वाक्य में इट क्या है? सर, इस वाक्य में इट ऑब्जेक्ट है. ऑब्जेक्ट का बेटा हिंदी बोल दो ना एक बार. सर, कर्म है. इट इस वाक्य में कर्म है. नम्रता, what is it in this sentence? It is the object in this sentence. Sorry, come again. Is the object in this sentence. Nidhi, change the person. No problem. Okay. Nita ji, what is it in this sentence? Nidhi ji, it is an object in this sentence. Okay. Nita ji, carry on. Rupal ji. Rupal ji. yes. Ask Rupal ji. question. Okay. What is नॉर्मल the कॉल की आदत है ना अभी तक नीता जी को. नॉर्मल, दिस इज नॉट नॉर्मल कॉल, दिस इज गूगल मीट.
Okay, sir. Rupal ji, what is the it in this sentence? It is the object in this sentence. Correct, Rupal ji. Sorry, Rupal. It is an object. It is And the Sorry. it is the it is an. an object in the It sentence. sucks. It sucks. It is an. 20D. किसी की मदद करने पर आपको 20 अंग्रेजी वाक्यों का दंड देना होता है। बोलो भारत माता की। जय। Okay. लेकिन किंतु परंतु बट परंतु नेताजी इज न्यू कैंडिडेट, तो अभी उनको दंड नहीं देते हैं। नेताजी एक्चुअली प्रोसेस ये है इस क्लास में कि हर बंदे को अपने पैरों पे खड़ा होना सिखाते हैं, उसकी मदद नहीं करना है। अभी यहाँ पे बहुत से लोगों ने एकदम गलत उत्तर दिए हैं, तो केवल सॉरी बोल देते हैं और फिर वो व्यक्ति एक बार, 2, 3, 4, 5 जितने भी बार चाहे वो उसको रिपीट कर दे और सुधारे, स्वयं सुधारे। और दूसरे की अगर आपने मदद की तो इसको मैं बैसाखी बोलता हूँ। बैसाखी, बैसाखी जानते हो? नहीं जानते तो लंगड़ा जो यहाँ पे दोनों हाथों के बीच में लगा के और चलता है, उसको बैसाखी कहते हैं। तो मैं नहीं चाहता कि कोई भी पंगु हो, अपाहिज हो, सब अपने पैरों पे खड़े हो, क्योंकि इस क्लास का जो गुरु मंत्र है नेताजी, आपको बताने की जरूरत नहीं है मुझे, आपने तो अच्छा पिकअप लिया है, लेकिन गुरु मंत्र ये है, इफ यू वांट टू बी ए गुड स्पीकर ऑफ इंग्लिश यू मस्ट बी ए गुड लिसनर। कैन एनीबडी रिपीट दिस गुरु मंत्र? Yes, sir. नम्रता। If you want to be a good English speaker, you must be a good listener. अच्छा आज वक्ता होने हाँ, अच्छा वक्ता होने के लिए अच्छा श्रोता होना जरूरी है। हु इज रेडी? So I'm ready. If you want to be a good English speaker, you must be a good listener. अच्छा वक्ता बनने के लिए अच्छा सुनना जरूरी है। Who is ready? I'm ready. If you want to be a good English speaker, you want to be a good listener. Sorry. Sorry. You want to be a good listener. Sorry. Okay, Come again. Neha, please. Who is ready? You Rupal have to ji? say who is ready. Who's ready? I am ready. If you want to be a good English speaker, you must be a good listener. अच्छा श्रोता बनने के लिए एक अच्छा वक्ता बनना जरूरी है। Upside down. अच्छा Good वक्ता बनने morning, Mini. अच्छा वक्ता बनने के लिए अच्छा श्रोता बनना जरूरी है। You are right, but you have to call anybody. रूपल दी। If you want to be a good English speaker, you want to be good listener. अच्छा वक्ता बनने के लिए अच्छा श्रोता बनना जरूरी है। नीता जी। If you want to be a good English speaker, you must be a good listener. अच्छा
वक्ता बनने के लिए अच्छा श्रोता बनना जरूरी है। Who is rest? I'm rest. If you want to be a good English speaker, you want to be a good Sorry, listener. You want sorry, Neha. you want No, to no. be a You should change want word. okay. You uh, you must You are missing only one. Yes, yes. Carry on. want. You want You was if right before it, Neha. No uh, problem. if No you problem, Neha. try again. You can Try. try tomorrow. Okay. It will do. Uh, can anybody guess the Hindi meaning of this interactive sentence? Yes, sir. I can guess the Hindi meaning of this interactive sentence. Who is it? That is, यह कौन है? कभी किसी ने Sir, ये can I? सवाल आपसे पूछा है? कौन? कभी किसी के जीवन में ऐसा सवाल कहीं किसी ने सुना हो, टीवी में, Yes, सीरियल? sir. TV में many times Okay. heard this. Namrata, your answer was little wrong. Nidhi will tell the correct. Nidhi. Who is it? That is कौन है? सबसे पहले मैं नीता जी से पूछता हूँ, अगर इंग्लिश में कोई पूछ ले आपसे कौन है, तो हिंदी का जवाब तो आपको पता है, मैं हूँ। इंग्लिश में नीता जी इसको आप कैसे बोलेंगी? सर, आई एम नीता मणि। वेरी नाइस। अब मैं मिनी से पूछता हूँ, मिनी आप कैसे बोलेंगी? It's me. अब मैं रूपल जी से पूछता हूँ, आई एम रूपा अग्रवाल। अब नम्रता जी। It's me. नेहा जी। I am Neha. निधि पटेल। Sir, it's me. मैं हूँ। Sir used the as far as 4-5 days before yesterday to his mummy. Is it, sir? Isn't it, na? Correct, you are absolutely right. Very nice memory. Yes, Sir, sir. I was also sir. thinking recently. I heard that this sentence. Yeah, it's Sir, by you. I was going to have a walk. One dog, was barking to us. I said it. To whom are you barking? Nidhi, you should also speak. Seldom, barking dogs seldom bite. एकदम से भौंका तो मैं लगा आपने टू whom are you barking? एक्चुअली गैस अभी भी जो इंग्लिश में अभी संतुष्ट स्थिति में अपने आप को नहीं पाता है, उसका कारण ये जो पैशन है, दिस इज अ पैशन।
The spelling of passion is on your screen. It's name of a bike also. Do you know what is the Hindi meaning of passion? Anybody? Fitur. Fitur is Uh, the Hindi meaning. Sir, जुनून. Yes, जुनून, दीवानगी, Yes, sir. फितूर. Yes. कभी कभी जब स्टूडेंट्स आके बताते हैं तो सुखद आश्चर्य होता है. एक बार तो एक लड़की बड़े गुस्से में, मतलब अनमने भाव में उसने बताया कि सर आपके कारण मुझे डांट पड़ गई आज, मम्मी ने डांटा. हमने बोला मेरे कारण क्यों? बोलती जब मैं सुबह उठी तो मम्मी बोल रही थी क्यों रात में तुम क्या एक ही दो दिन उसने अटेंड की थी क्लास, और चंचल अच्छी स्वभाव की लड़की थी, हंसमुख. तो दूसरे तीसरे दिन उसने शिकायत की. हमने बोला क्यों, हमारे कारण क्यों डांटा? तो सुबह जब मैं उठी तो मम्मी बोल रही थी क्यों रात में तुम क्या बड़बड़ा रही थी, हियर यू आर, हियर यू आर. तो ये बड़ी स्नेह वाली बात थी, स्नेह वाली डांट थी, स्नेह वाला ये नाराजगी थी. सुन के लगा कि उस लड़की के दिमाग में मतलब वो सपने में इंग्लिश बोल रही है, यानी किस तरह से पैशन है. और ये पैशन आपको निश्चित तौर पर सफलता दिलाता है, लेकिन संभवतः ये हर व्यक्ति इतना पैशनेटेड हो नहीं पाता है. एवरीबडी कैन नॉट बी सो मच पैशनेटेड. और ये किसी भी क्षेत्र में, वेयर एवर यू आर, वॉट एवर यू आर डूइंग, डेफिनेटली इट सपोर्ट्स यू. अब चलिए हम इसका पूरा अभ्यास शुरू करते हैं. इसको इस तरह से कल्पना कीजिए कि डोर बेल बजती है, टिंग टोंग. तो आप जाहिर सी बात है हिंदी में तो पूछते हैं ही है कौन है, तो या फिर नॉक नॉक, कोई खटखटाता है दरवाजे पे, तो उस समय की स्थिति है. एक्चुअली ये हमने अचानक इसलिए दिया कि अभी किसी ने इसमें गलत जवाब दिया था आश्चर्यजनक रूप से. शायद निधि पटेल ने बोला था आई एम निधि, जबकि उसको बोलना था इट्स निधि या इट्स निधि, ऐसा कुछ. नो सर, I replied lastly. It's me. हमें एग्जैक्ट ध्यान नहीं आ रहा है, लेकिन रिकॉर्डिंग में है तो देखना. नीता जी पूछ रही थी, तो जिसने भी जवाब दिया था एक्चुअली वो जवाब ये होना चाहिए. शायद ऐसा पूछा था निधि पटेल को, या पता नहीं, ध्यान नहीं है एकदम. तो उस समय जवाब ये आना चाहिए इसमें. Yeah, that time she replied, I am. आई एम निधि, ऐसा कुछ. तो ये उसके, देखिए बच्चों कितनी मजेदार बात है, आपकी गलती से आपको फट से कोई चीज उससे रिलेटेड मिल जाती है. मीन्स मिस्टेक्स आर गुड इन दिस क्लास, यू कैन मेक मिस्टेक विदाउट एनी हेजिटेशन. ओके, लेट्स स्टार्ट. आई एम स्टार्टिंग. अब दोस्तों Sir, by process ना, yeah, I remember. हाँ, हेलो कर रही थी. हाँ. अब दोस्तों क्लास में तो हम बैठे होते हैं तो एक एक को देखते हुए बोलते हैं, लेकिन यहाँ हम क्या करेंगे, हम नाम लेते जाएंगे. तो आप केवल हु इज इट बस पूछना. ठीक है, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ. निधि, नम्रता का तुमने दरवाजा नॉक नॉक किया. नम्रता पूछो. Who is it? It's me, नम्रता. कौन है? मैं हूँ नम्रता.
Who एक is it? सेकंड, एक सेकंड रुकना नेहा। रुकना रुकना बेटा। नीता जी के चेहरे पे स्ट्रेस का भाव दिख रहा है, वो नेटवर्क के कारण है, क्योंकि बार बार पिक्चर डिसअपियर हो रही। नीता जी, आर यू ओके फेसिंग नेटवर्क Ne- इश्यू? Neeta ji, you should keep Yes. a smile whenever you in class. Otherwise, you should have to pay extra fees. ये जिस तरह से निधि और नम्रता एकदम मस्त मजे लेते हुए इनके, अगर इस रिकॉर्डिंग को देखना, आपको एक क्षण के लिए भी नहीं लगेगा कि ये इंग्लिश बोलने की कोशिश कर रहे हैं, विशेषकर निधि। बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे निधि दूर है, दरवाजे के बाहर है और चिल्ला के बोले मैं हूँ भाई। Sir, I learn just like kids. I teach. हाँ, I always teach Adi in sports. हम हमेशा पहले भी कहते आए हैं, बहुत दिनों बाद आज फिर से कहते हैं, सीखने के लिए बच्चे बनना जरूरी है। और अगर आप सोच रहे होंगे क्या बात, कैसी बात कर रहे हैं मां साहब, अभी इस उम्र में बच्चे बनेंगे, तो आप खोज के देखिए, आप सबके अंदर एक बच्चा मौजूद है जिसको आपने जंजीरों से खूब जम के बांध के रखा है। कभी कभी अकेले में वो बाहर आता है, आप इनकार नहीं कर सकते इसको। सर, हम लोगों का आपकी क्लास में आ जाता है। तो बच्चों, ये बहुत अच्छा अवसर है। लेट द चाइल्ड इनसाइड कम आउट। अपने अंदर के बच्चे को बाहर आने दीजिए और बहुत बड़े मत बनिए। बी अ चाइल्ड, you will definitely speak correct sentences and correct English. अब निधि, मिनी का दरवाजा खटखटाओ। Who is it? It's me, निधि दी। कौन है? मैं हूँ निधि दी। आजा। नेहा, मिनी तुम्हारा दरवाजा नॉक कर रही है, बेल बजा रही है। Who is it? इट्स मी निधि। कौन है? मैं हूँ निधि। बढ़िया। थोड़ा हमारा एक्सप्रेशन गलत जा रहा है, लेकिन अब क्रम में आगे बढ़ते चले जाते हैं। नीता जी। हु इज इट? इट्स मी नेहा जी। कौन है? मैं हूँ नेहा जी। बैठी निधि जी के स्वागत। रूपल जी। हु इज इट? इट्स मी नीता। कौन है? मैं हूँ नीता। अब रूपल जी, एक मिनट में चेक कर लेता हूँ। रोशनी ने तो बोल दिया है कि वो जवाब नहीं देगी। इज एनीबडी एल्स रेस्ट? क्या और कोई शेष है, बाकी है? नो। चलिए, मैं आपके दरवाजे को नॉक कर रहा हूँ। नॉक नॉक। हु इज इट? इट्स मी नीता जी फ्रॉम जबलपुर। कौन है? मैं हूँ जबलपुर से। हाँ सर, नाम तो सुना होगा। प्लीज कम सर। थैंक यू। अब पूरा यही राउंड आगे बढ़ाते हैं और हम अपने से शुरुआत करते हैं। निधि, हम तुम्हारे दरवाजे पे आए हैं। अब डबल आंसर होंगे, क्वेश्चन आंसर होंगे, ठीक है? नहीं नहीं,
निधि तुम हमारा दरवाजा नॉक करो या बेल बजाओ। बेल बजाओ, बोलो टिंग टॉन्ग। Ting tong. हु इज इट? Sir, it's me from your place. हु आर यू प्लीज? Sir, Nidhi. नहीं, यहाँ I'm पूरा Nidhi. उत्तर। हाँ, I'm Nidhi. यस। आप कौन? Sir, मैं निधि। दोस्तों, आपके मन में ये सवाल चल रहा होगा और अच्छी बात यह है कि किसी से गलती नहीं हुई, नहीं तो कोई ना कोई अपना नाम बताता, तो फिर हम रोकते राउंड को और बोलते कि आमतौर पे क्या होता है दोस्तों, जब आप घर पहुंचते हैं और नॉक करते हैं या बेल बजाते हैं, तो आमतौर पे एक काल्पनिक स्थिति है कि मम्मी की आवाज आती है, कौन है? और जैसे आप बोलते हो मैं हूं, तो मम्मी चूंकि आपकी आवाज पहचानती हैं, इसलिए वो दरवाजा खोलती हैं। अब स्थिति ये है कि कोई अनजान व्यक्ति आया हुआ है जिसकी आवाज नहीं पहचान पाए, तो दरवाजा नहीं खोलेंगे, दूसरा सवाल करेंगे आप कौन, तो ये वो वाली स्थिति को मान के चलिए। ओके, अब निधि से शुरुआत हुई थी, तो अब हमें आगे बढ़ना होगा, राइट? नहीं, कहाँ आगे बढ़ें, कैसे करें, हम थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए। Sir, I have to ask. नॉक करना है ना? To whom are you knock? Sir, किसका डोर खटखटा है? नहीं नहीं, तुमने नहीं। हमारे बेल बजाई थी, ठीक है ना? अब हमें आगे हाँ। बढ़ना पड़ेगा। हाँ। चलो, हम नम्रता के डोर बेल बजा रहे हैं, टिंग टॉन्ग। Who is it? इट्स मी। Who? 3 लेटर का सेंटेंस बोलना पड़ेगा। Who is it? नहीं, ये तो सही हो Where? गया। Sir, चलो, where you from? वेट। मिमी, मिनी, टिंग टॉन्ग। हु इज इट? इट्स मी। आप कौन? नहीं, तुमने भी गलत कर दिया। चलो नीता जी, टिंग टॉन्ग। Who is it? इट्स मी। Who are you? आई एम पोस्टमैन। Okay, please, Sir, please, sir, come. Sir, Neeta ji is good listener. यस, एब्सोल्युटली। Thank you, sir. थैंक हर, शी प्रेज्ड यू। Yes, thank you so much, Nidhi ji. Welcome. दोस्तों, सुनना वास्तव में थोड़ा सा कठिन काम तो है कि हमें बोलने की ज्यादा आदत होती है, हम सुनते नहीं हैं, तो इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। वेरी गुड नीता जी, अब आप किसी और की डोर बेल बजाइए या दरवाजा नॉक कीजिए। आप चलिए नम्रता का दरवाजा नॉक कीजिए। Knock, knock. Who is it? It's me. Who are you? I'm your colleague. Oh, please come. Thank you. I am knocking the door of Rupal ji. यस। Rupal ji, knock, 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 knock. Who is it? It's me. Who are you? I am Namrita from Jabalpur, from Jhasar classes. Oh, come inside. Thank you. Knock, knock. Neha. Who is it? It's me. Who are you? I'm your friend. Okay, come. निधि निधि तिवारी। टिंग टोंग। हु इज इट?
It's me. Who are you? I am uh, I am Neha from Sahapra. Please come. Thank you. Who is rest? Didi, I am rest. Ting tong. Who is it? It's me. Who are you? I am Nidhi from Jabalpur. Okay, Didi, come in. Thank you. Who is rest? Ting tong. एक बार रूपल जी से पूछ लो। Pal Didi, ting tong. Who is it? Didi, it's me. Who are you? Didi, I am your colleague. And who is rest? नहीं बुलाओगी दीदी हमको? अंदर नहीं बुलाओगी? कम कम सिवा। देखो शिवांग, ज्यादा ऊधम नहीं किया करो है, बहुत ऊधम करते हो, इसलिए नहीं बुलाती ना रूपल जी। हाँ, लीव इट शिवांग, ऊधम करना है ना। Guys, this is today's idiom. पहले हम कुछ मीनिंग्स लिख देते हैं। सबसे आखिरी में शिवांग ने किया था। शिवांग, पूछना शुरू करो, एक एक करके आगे बढ़ जाएगा। Didi Patel Didi, what is wind? Wild. What is wild? Sorry. शिवांग, wild is a noun. Namrata, what is the Hindi meaning of wild? The Hindi meaning of wild is jungly. Sorry. Neha? Okay. Neha, what is Yes. wild? What is another wild? And the another wild is adjective. What is the Hindi meaning of wild? Rupal ji, To what whom is are the you Hindi asking? meaning? Rupal ji, what is the Hindi meaning of wild? The Hindi meaning of wild is jungly. Shiva, Nidhi Patel, what is the wildness? Hmm. As far as I think, wildness is pronoun. Noun. Wildness is noun. Nita ji, what is the Hindi meaning of wildness? निधि जी, the Hindi meaning of wildness is जंगलीपना या जंगलीपन. Guys, your pronunciation is wrong. Now I have written Hindi. Please ask the same question to one. Okay, I'm starting with Mimi. Mimi, what is wilderness? Wilderness is noun. And what is the meaning of wilderness? Sir. बोल दो तुम। The Hindi meaning of wilderness is usar. बच्चों, आप में से कोई इस शब्द को जानता है? रामायण अगर पढ़ी होगी तो बताओ।
सर ऊसर बीज भय भय फल जथा। जथा, करेक्ट। तो डू यू नो द मीनिंग ऑफ ऊसर? नो? हम दूसरा सर मतलब ऊसर मतलब कुछ भी कहते सर रहो, वो बोलते रहो, एक कोई ऐसे फर्क ही नहीं पड़ता। हाँ जस्ट बीहड़। हाँ, डू यू नो सर बीहड़? वो कचरा हो जाता है अपने आप जो बिना बीज लगाए। निर्जन स्थान, जहाँ पे कोई पेड़ पौधे नहीं उगते, रेगिस्तान भी बोल सकते हैं हम। हाँ जस्ट लाइक डिजर्ट। बंजर, बंजर लाइक। अगर आप लोगों ने पुरानी फिल्में देखी होंगी तो मध्य प्रदेश में एक जगह काफी बीहड़ है, वहां पे डाकू पाए जाते हैं। सर बंजर इस हाँ, टाइप का। yes। हाँ बंजर भूमि। ऊसर बीज फय फल जथा, अगर आप निर्जन स्थान पे या बीहड़ में बोएंगे कुछ भी तो फल कहाँ से होंगे? कोई अक्षरशः अनुवाद करके पहले अगर बताना चाहे मुहावरे का। जिसको पहले से मिला हो, प्लीज डू नॉट पोक, डू नॉट लीक आउट। मैं एक निवेदन और करना चाहूंगा नीता जी के चलते। मुहावरे में हिंदी अर्थ बिल्कुल अलग होता है, परे होता है, और रियल इंग्लिश यही है एक्चुअली। इसलिए मैं जो ऊपर लिखा था मैंने, वो इंटरेक्टिव सेंटेंस था, यानी बोलचाल का वाक्य जो हमारे दैनिक जीवन में रोज काम में आता है, और उसके साथ एक इडियम, एक मुहावरा देता हूँ जिसमें अर्थ बिल्कुल भिन्न होता है। और इस बहाने दोस्तों आपके हिंदी के मुहावरे भी स्ट्रांग हो जाएंगे। बैच पूरा होते होते आप 300-400 मुहावरों से सुसज्जित होंगे। कोई थोड़ा सा ट्रांसलेशन करके बताए, फिर अपन आगे बढ़े। सर बंजर या निर्जन जगह पे रोना। यस, बहुत कठिन नहीं था, साफ साफ लिखा है। जी क्राय सर। जानते हैं, क्राय यानी रोना, और चिल्लाना भी होता है। वाइल्डनेस, बंजर जगह पे। और उधर पे कोई नहीं सुनेगा, रोते रहो। ये इसने हिंट दे दी। सर सर कहना है राइट ट्राई। हाँ सर कैन आई? हाँ, नम्रता निधि बहुत कम था। ओके निधि, फर्स्ट यू। अरे तुम लोग भैंस के आगे बीन सॉरी, बजाना। आफ्टर यू। रोनटा ही कर रही दीदी। आफ्टर यू मिला है कि नहीं ये बताओ बच्चे। सर आई रेक्टिफाई माई मिस्टेक एंड आई रिपीटेड आफ्टर यू। मिनी तुम्हें बोल रही है वो, तो सर बताओ। भैंस के आगे बीन बजाना। वाह, नम्रता, व्हाट्स योर आंसर सेम? नो सर, अब चिल्लाने से क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत, इट वाज माय आंसर। भैंस के आगे बीन बजाओ, भैंस खड़ी पगुराए।
आप में से काफी लोग गांव से संबंधित हैं, कोई मुझे बताएगा पगराने का क्या अर्थ होता है? सर वो हमेशा मुंह नहीं चलाती रहती हैं अपना, उनका कभी बंद होता ही नहीं है, तो उसे पगराना बोलते हैं। बेटा उसको जब वो पगराती नहीं है तो हाँ, तो वो उसको बीमार समझते हैं, डॉक्टरों का कहना होता है। तो जुगाली कहते हैं। जुगाली करना कहते हैं। तो रूपल जी इज करेक्ट, वो ऐसे ऐसे जो चलाती रहती है। हो सकता है मैं जो बोलने जा रहा हूँ उसमें थोड़ा सा कहीं गलती हो। जानवरों के पेट में दो अमाशय, इन लोगों के दो अमाशय पाए जाते हैं, आप इसको चेक कीजिएगा। तो ये लोग पहले बहुत सारा चारा अंदर ले जाती हैं, फिर उसको बाहर लेकर आती हैं और आराम से उसको, जैसे अपने अपने से बोलते हैं ना बेटा 32 बार चबाना चाहिए हर कौर को, तो वो उसको अच्छे से चबाती हैं, इससे उनका पाचन अच्छा रहता है और वो स्वस्थ रहती है। तो वो जो भैं भैं करती है उसको पगराना कहते हैं, आवाज से जो कहते हैं। तो आज एक बार तो आप ये पूरा हिंदी बोलिएगा, फिर बाद में चाहे आप भैंस के आगे बीन बजाओ, इतना बस बोल सकते हैं, लेकिन आज पूरा बोलिएगा। आई एम स्टार्टिंग विथ निधि। क्राइंग इन वाइल्डनेस, भैंस के आगे बीन बजाओ, भैंस खड़ी पगराए। नम्रता। क्राइंग इन वाइल्डरनेस, भैंस के आगे बीन बजाओ, भैंस खड़ी पगुराए। रूपल जी। क्राइंग इन वाइल्डरनेस, भैंस के आगे बीन बजाओ, भैंस खड़ी पगुराए। निधि तिवारी। क्राइंग इन वाइल्डरनेस, भैंस के आगे बीन बजाओ, भैंस खड़ी पगुराए। नेहा दी। क्राइंग इन विल्डरनेस, दैट इज भैंस के आगे। सॉरी फॉर योर प्रोनाउंसिएशन। क्राइंग इन विल्डरनेस, दैट इज भैंस के आगे बीन बजाओ। Sorry, come again, please. Sorry, no, it's not working. Crying in wilderness, that is भैंस के आगे बीन बजाओ, भैंस खड़ी पगराए। Okay. So there you are. Okay, नीता जी। क्राइंग इन वाइल्डरनेस, भैंस के आगे बीन बजाओ, भैंस खड़ी पगुराए। निधि पटेल। आई एम डन। Didi, रूपल जी इज just- रेस्ट। Rupal I'm Didi is also also सिभांग। Sorry, crying sorry. in wild, He is not Sibhang. He is Shivang. ओके, थैंक यू। crying in wilderness, भैंस के आगे बीन बजा और भैंस खड़ी पगुराए। Who is rest? निशा दीदी। रोशनी दीदी। आर ऑल डन? Yes, sir. All are done. ओके दोस्तों, एक मजेदार चीज सीखते हैं। अंग्रेज एडजेक्टिव में नेस लगा के उसका नाउन बना ले। अभी जो हमने बोला उसको सेम टू सेम कौन रिपीट कर सकता है बेटा? Can I try? Can I try? नम्रता। After you, नम्रता दीदी। अंग्रेज एडजेक्टिव में नेस लगा करके का नाउन बना देते हैं। एक बार निधि और बोल दो। अंग्रेज एडजेक्टिव में नेस लगाकर नाउन बना देते हैं। अब हम एक राउंड शुरू कर रहे हैं, उसमें जो तैयार होगा वो बोलेगा, वो अपने आसपास का कोई भी एक एडजेक्टिव बोलेगा और उसके बाद उसमें नेस लगा के उसका नाउन बोलेगा, और उसको ऐसे बोलेंगे अपन, जैसे हम इसका बोल दे रहे हैं,
Near is adjective and nearness is noun. Who is ready? एक और उदाहरण दे. Should I? Nidhi, are you ready? Okay, Nidhi. Minnie, I'm not talking to you. I'm talking to Nidhi. Sir, you are giving one more example. Should I? Yes, sir, please. Dark is an adjective. Darkness is a noun. Who is ready? I'm ready. Fresh I'm is ready. a noun. Freshness is an adjective. Okay, Namrata Didi. Kind is adjective and kindness is a noun. Nidhi, I'm ready. Good. Good is a adjective and goodness is a noun. Who is ready? I am ready. बेटा ऐसा बोलना अगली बार. Good is an adjective and goodness is a noun. नीता जी. Mad is adjective and madness is a noun. Who is rest? Okay, sir. All done. इसमें थोड़ा समय लगता है बच्चों को सोचने में. It takes little time to think. Sophia is an adjective and fairness is a noun. अब ये कॉमन शब्द. Fair. Who is ready? Who is ready? I am ready. Grotesque is adjective and grotesqueness noun. Sorry, it is not working. Google is also not taking what are you speaking. It is, I think, wrong. Grotesque is adjective, grotesqueness noun. सुना है कभी ये शब्द बेटा? It is not working. I'm ready. Legend is an adjective or legendness is a noun. Legend. Sorry. It's not working. दोस्तों एक मजेदार उदाहरण सुनिएगा. हमारी क्लास में जब छोटे बच्चे होते हैं वो एक मामले में बड़े एक्सपर्ट होते हैं, उनको नहीं बनता है, और उसमें हम अपने बेटे को भी शामिल कर रहे हैं. छोटा सा था तो एकदम से नहीं आता था, तो जैसे हम एक उदाहरण दे रहे हैं, हमने बोला डार्क इज एन एडजेक्टिव, डार्कनेस इज ए नाउन, तो वो फट से हाथ उठाता था. लाइट इज एन एडजेक्टिव, लाइटनेस इज ए नाउन. उसका अपोजिट फट से दिमाग में पता नहीं इन लोग को कहाँ से आया. Sir, I am ready. I am. Bad is an adjective. Badness is a noun. ये Who is देखो. ready? I am ready. Poor is an adjective and poorness is a noun. अब बहुत मस्त गलती हुई है बच्चों. Yes, sir. Should I erase the upper one? Yes, sir. You Yes, should sir. erase Yes, them. should You erase. should erase. The upper one. बच्चों ये जो मजेदार गेम है इससे कुछ अपवाद भी हमें सीखने मिलते हैं.
चलो, बहुत देर से जिसने नहीं बोला है कुछ भी उससे हम पूछ लेते हैं। रूपल जी, व्हाट इज पुअर? पुअर इज अ नाउन। थैंक यू। अब आप यही सवाल किससे कीजिए? नीता जी से कर लीजिए। नीता जी, व्हाट इज पुअर? Poor is a adjective. एन एडजेक्टिव। Yes, sir. Poor is an adjective. नीता जी, आप इसका हिंदी मीनिंग किसी और से पूछ लीजिए जिसका नाम याद है। Namrata ji, Please ask. what is the meaning of poor? Hindi meaning of poor. Poor is Hindi meaning of poor is गरीब. Can anybody tell me the noun of poor? It is not same. Yes, sir. Poverty. Yes. Poverty. And can you tell me the spelling of poverty? Sir, आ गई. Yes. Google is taking POVERTY. Google, you are naughty boy. चलो बेटा, इसका हिंदी पूछ लो किसी से। रूपल जी से हिंदी पूछ लेना। नेहा, तुम पूछ इसका। Rupal ji, what is the Hindi meaning of poverty? Poverty is, sir, I don't know. आप हमसे पूछ लीजिए। Sir, what is the Hindi meaning of poverty? The Hindi meaning of poverty is शक्तिशाली चाय। पावर टी। Okay, Minnie, what is the Hindi meaning of poverty? The Hindi meaning of poverty is गरीबी. चलो, हमें बताने की जरूरत नहीं पड़ी, नम्रता ने ही नाउन बना दिया। तो दोस्तों, इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है कि सब धान एक पसेरी नहीं होती है। ये गांव की कहावत है, सब धान एक पसेरी नहीं होती। मतलब सब एक सा नियम चले ऐसा नहीं होता है। और इसको हिंदी में कहते हैं अपवाद। एंड इट इज कॉल्ड exception in English. EXCEPTION. Exception is a word which generally breaks the grammatical rule. मतलब बोला गया है कि सब ऐसे चलेंगे, चले जा रहे थे, अचानक एक बाहर निकल। Exception. सब बड़े मजे Sir, से। should I make? Yes, you should. Hard is an adjective and hardness is a noun. Yes, hard, hardness. Dark, darkness. Light, lightness. Fair, fairness. जिसको बाद में याद आए Can बेटा I make one another? व्हाट्सएप में कर देना, ठीक है? नम्रता आगे। Tough is an adjective and toughness is a noun. Simple. Sir, can I make? Yes, yes, please. Smile is adjective. Smileness is noun. Sorry. Sorry. Exception.
Google is not taking. Sir, can I make one more? पहले मन में नाउन सोच लीजिए, ऐसा कौन सा शब्द है जो आपने कभी ना कभी प्रयोग किया था जिसमें नेस लगा है, और उसके बाद उसमें से नेस हटा दीजिए, एडजेक्टिव मिल जाएगा। नम्रता। Rude is an adjective and rudeness is a noun. यस। So I'm ready. Sweet and adjective and sweetness is a noun. सिंपल। स्वीट, स्वीटनेस। अब सर हमें दूसरा याद आ गया। Sir, can I make? हाँ, you can. I am going to spoken out of your mouth. Okay. Yes, sir. Bitter is an adjective and bitterness is a noun. Yes. वहाँ स्वीट आया था तो उसका कर दो अपोजिट, बिटर, बिटर। पूछ सकते हैं और two or three in rest in मिर्ची करेक्ट, करेक्ट। hot in adjective, hotness in noun. It is done. हार्ड की हॉट। Yes. गूगल देखो क्या ले रहा हूँ पटा, उसको सही ढंग से बोलो बेटा। Hot in adjective, hotness and noun. Hotness. It is right. नहीं, देखो ना क्या लेता है गूगल, देखो। चलो, लेकिन हम समझ गए, गरम गरम वाला बोल रहे हैं ना तुम। चलो ठीक है। अब देखो हम बोल रहे हैं हॉट इज एन एडजेक्टिव, हॉटनेस इज ए नाउन। sir, can I make? यस। Kind is adjective. Kindness is noun. इट इज डन। इज इट डन? Sir, it is done by me. ओह माय गॉड। Sorry. You got 3D, Rupal ji, please. Hope is an adjective. Hopeness is a noun. Are you giving 3D? Okay, 3D first. Okay. Just I think sir is not allowing for 3D. होपनेस ले तो लिया, होपनेस गूगल हैज टेकन। सुना नहीं, आई हैव नेवर हर्ड होपनेस। होप इज ऑलरेडी ए नाउन। उम्मीद, इट्स ए नाउन। Sir, hopefully होता, hopefully या hopeless. Hopefully is adverb. Hopefully is adverb. Hopeless is also less लगता है। Yes, hopeless. ये Google is taking. Okay, तब तक जरा मिनी, what should be the verb for Rona? The verb for Rona should be weep. सेकेंड फॉर्म पूछ लो किसी और से। Rupal di, what should be the second form of cry? the second. Come again. What should be the second form of cry? The second form of cry should be crying. And Sorry. Sorry. आप किसी और से पूछ लीजिए रूप।
Namrata, what should be second form of cry? The second form of cry should be cried. Spelling पूछ What? लेना second form. Nidhi, what is the spelling of second form of cry? The spelling of cry should be CRIED. Didi, come again, Cry. please. The spelling of cry is CRIED. Beta, this is also correct way to answer. It is a small way, but it is right. She directly said it. Second form. It will do. Okay. Shivang, what should be the third form of cry? Didi, the third form of cry is also cried. Okay, Neeta ji, what should be the verb for chillana? Come again. Should be the verb for chillana. I don't know. I didn't understand your question. Okay, ask the same question to me, Nita ji. Namrata ji, what should be the verb? I didn't. Sorry. Okay, let me ask. Neha, what is the second form of cry? Sorry, what should be the verb for chillana? The verb for chillana should be cry. Nidhi Didi, what should be the verb second form of cry? The second form of cry should be cried. Rupal ji, what should be the third form of cry? The third form should be cried is cried. Sorry, come again. The third form should be cried should be the cried. CRIED. Sorry, Rupal ji. Sorry, Rupal ji. Your sentence is not complete. Nidhi, come again. What should be the third form of cry? The third form of cry should be cried. Namrata, what is the Hindi meaning of cried? Sorry, Rupal ji. Ask another question. तुम ही पूछ लो नंबर. Nidhi, should I erase? लिखना गया. Sorry, हाँ अभी. Should I erase the first one? पहले Second one. लिखवाओगी नहीं? Should I erase the second? भगवान Have you पूछ पहले तो लिखवाते हो. sorry, Sivang, have you written that? Yes, Didi, I have written that. Should I erase? Yes, of Second course. one? You should erase, please. Nidhi Tiwari Didi, have you written the last one or second one? Yes, Shivang bhaiya, I have written that. Should I erase? Yes, you should erase. Rupal ji, should we conclude the class? Neeta ji, should we conclude the class?
Yes, sir. निधि? No, sir. It is 8:30 बेटा। सर 28। सर हम लोग 20। Sir, 2 minutes are अच्छे remaining. बच्चे हैं सर हम लोग पढ़ने से डरते नहीं है। अरे, तो चलो फिर एक सेंटेंस लिखो। स्पीच के पहले विच चैप्टर वाज गोइंग ऑन? सर स्पीच के पहले वी चैप्टर वाज गोइंग ऑन। बी प्रेजेंट और बी पास्ट? सर बी पास्ट वाज गोइंग ऑन। Okay, Namrata, can you tell me the last sentence of be past? Yes, sir. It was. There was a king. That is, एक राजा था. Okay. अगला वाक्य लिखिए। कल बुधवार था। नीता जी ध्यान से सुनिएगा, और ये पूरी रिकॉर्डिंग है, आप कभी भी देख सकते हैं। इस 3 लेटर के सेंटेंस को डिस्क्रिप्शन के साथ कैसे बनाते हैं, इस प्रोसेस को आप वॉच कीजिए। वॉच द प्रोसेस। हु हैज टू मेक दिस सेंटेंस? Sir, I have to make this sentence. Go ahead. This sentence is related to the past. Correct. Firstly, I will take. It is an affirmative. It is an affirmative sentence. Correct. Firstly, I will take the subject, and the subject is tomorrow or yesterday. Sir, yesterday will not. अब तुम पूछो नम्रता, who has to make this sentence? Who has to make this sentence? Yes, I have to make this sentence. नीता जी, अभी आपको प्रोसेस पता नहीं है, अभी मत बनाए, सुन ले एक बार। Anybody else? नम्रता, दिस सेंटेंस जस्ट लाइक एक राजा था। ओके नहीं, आफ्टर यू। Okay, sir, should I try? No, it is Ronthai. Ronthai will not do. Ronthai will not do. Everybody should get a chance. Who else is ready? गुड मॉर्निंग नेहा। I have to make this sentence. It is an be past. No. ऐसे नहीं बोलते बेटा, गंदी बात। It is an affirmative sentence. ये रोंटाई कर रही हैं आप, रोंटाई। It is an the sentence related to be past. It is an affirmative Something is sentence. missing, Didi. Main thing Main is thing is missing. Main thing Okay. is missing, Didi. This sentence is related to B chapter. ये तुम्हारे Be स्पीच past. में जो हमने तुम्हें बोला था ना नेहा, हो सकता है तुम्हें शॉक लगा हो, खराब लगा हो। No, sir.
लेकिन वो बिना उसके तो वाक्य पूरा ही नहीं होता। Yes, be past. It is an affirmative sentence. Firstly, I will take the subject, and the subject is there. Subject is yesterday. Yesterday No. there was. Sure. Okay, Nidhi, you make this sentence. Thank you, sir. Sir, am I? Yes, उसका नाम तो मिनी हो गया है, मिनी। Okay, sir. I have to make this sentence. This sentence is related to be past. Uh, it is an affirmative sentence. Firstly, I will take the subject, and the subject is it. Thereafter, I will take the main verb, and the main verb is was. Uh, uh, Thereafter, I will take the object. नहीं, noun, adjective or noun. Wednesday. And lastly, I will take the object, and the object is tomorrow. Finally, full stop. Tomorrow अभी नहीं आया है। टुमारो दीदी। Sorry, yesterday. निधि सुनना, सभी लोग सुनना। वेंसडे, 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 वेंसडे। It was Wednesday yesterday. It was Wednesday yesterday. Complete the process. कल बुधवार था। नम्रता, It was Wednesday yesterday. Have you written? What should I ask? Wednesday. It was Wednesday yesterday. कल बुधवार था. शिवांग. It was Wednesday yesterday. कल बुधवार था. कल दीदी. Okay, no, मिनी दीदी. It was Wednesday yesterday. कल बुधवार था. रूपल दी. It was Wednesday. कल yesterday. कल बुधवार था। नीता जी। It was Wednesday yesterday. कल बुधवार था. निधि पटेल. शीर्षक Alright. It was Wednesday. Neha is next. Yeah, Neha. It was Wednesday yesterday. कल बुधवार था. Saul Arden. दोस्तों, कुछ लोग इस वाक्य को अच्छे, जब इंग्लिश आप भी बोलने लग जाओ तब इसको वैसे बोल देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यस्टरडे वॉज वेंसडे ऐसा भी बोलते हैं, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर आप ऐसा नहीं लिखेंगे तो नंबर कट जाएंगे। तो ग्रामर की दृष्टि से ये सही है, क्योंकि यस्टरडे सब्जेक्ट नहीं है, यस्टरडे कर्ता नहीं है।
तो जब कर्ता की कमी होती है तो अंग्रेजी में दो शब्द लगते हैं। एक है देयर, जो आप देख चुके हैं इसके ऊपर वाले सेंटेंस में, और दूसरा इट। ये सब्जेक्ट की कमी को पूरा करने के लिए आते हैं। इनका कोई अर्थ नहीं निकलता है वाक्य में। यहाँ से वाक्य शुरू हो रहा है, कल बुधवार था, इट पे पहुंचा ही नहीं मेरा हाथ। तो ये परिचयात्मक कर्ता कहलाता है, इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट। ये केवल परिचय कराने के लिए आता है। हिंदी वाक्य में इसका कोई अर्थ नहीं निकलता है। ऐसे बहुत से सेंटेंस हम रोज व्हाट्सएप में देखते रहते हैं, मैसेजेस में। अब उसको गौर कीजिए आज के बाद कि कहाँ पे इट आ रहा है, कहाँ देयर आ रहा है। फिर उसको ऐसे ऐसे करके देखिए कि उसका वहां अर्थ निकल रहा है या नहीं। इट इज 38 past 8, 8:38 हो गए। Sir, It is the use of it. हाँ sir, for non-living we used it, and living for living we used there. It is right, sir. Yes, it is a good point. Right, good point. Thank you. Good night, Shapak. Thank you for joining. Bye. See you tomorrow. Thank you, sir. Thank you, sir. Good night, sir. Good night.